آپ کس بات سے اختلاف ہے؟ میں آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اختلاف نہیں کریں گے تو جمہوریت کا یہی حسن ہے۔ گاؤں ہے نا، اس کو بیسکلی کچھ لوگوں نے قبرستان سمجھا ہوا ہے کہ پوری زندگی رہتے ہیں شہروں میں، اسلام آباد میں رہو، لاہور میں رہو، کراچی میں، فوت ہوتے ہیں تاکہ دفن گاؤں میں کرو۔ یہ ہمارا گاؤں ہے، یہاں پہ آ کے رہو، قبرستان نہیں ہے۔ ریاض بھائی اس بات پہ مسکرا گئے چونکہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوٹ کے واپس اپنے دیش میں آپ نے ہمارا گاؤں میں آنا جانا ہمارا بھی نہیں تھا، تو نہ پتا تھا کہ کون ہے، خاندان کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ زمینیں یہ ہم نے غیر آباد کی ہوئی ہیں، ان کو آباد کریں، یہیں سے ہمارے آبا اجداد غلہ اگاتے تھے۔ ابھی جو نئے لڑکے آتے ہیں ان کو یہاں چلنا نہیں آتا، تو ظاہر ہے جو ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں وہ گرمی میں اگر آئیں گے تو ان کو کم از کم چلنا آ جائے۔ ابھی تو یہاں سڑکوں کی بھی اپروچ ہے، تعلیمی نظام بھی بہتر ہے، تو جو پرانا ہمارا سسٹم ہے جو بحال ہو بات ٹھیک کریں کہ روایت لوٹ کے آ رہا ہے۔ یہ ہماری جو اوریجنل غذا تھی، پہلے لوگ بہت پیچھے پہلے جب لوگ کہتے تھے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ابھی لوگ محسوس کر رہے ہیں یار آرٹیفیشل کھا کے ہم تھک گئے۔ خدا رہا یہ آرٹیفیشل شہرت کو چھوڑ دیجئے، اپنے اس کشمیر کو آباد کریں، اپنی زمینوں کو آباد کریں۔ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں اینڈ کشمیر ٹی وی کھل آبادی سے ساجد مغل کا سلام قبول کیجیے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیت، ایسی شخصیتیں ہیں جن کا ایک بڑا نام ہے۔ سردار قمر زمان خان صاحب اور سردار ضیاء القمر صاحب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے، اور کھل آبادیہ کے اندر ان کا ایک منفرد نام ہے۔ بڑی پازیٹیو شخصیت ہیں، سماجی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد عزیز عباسی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارا یہ کشمیر جنت نظیر اور عید کا پور مسرت یہاں پہ موقع تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری یہ دونوں گاؤں کھل مدینہ اور کھلا بستیاں بالکل ویران پڑے ہوئے تھے۔ چند ایک لوگ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے آبا اجداد کے دور میں، یا آپ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، تو جب آپ عید کے لیے نکلتے تھے تو ہر 4 قدم پر آپ کو ٹولیاں ملتی تھیں، گروپ ملتے تھے، بہت سارے نوجوان یا ہمارے جو یوتھ ہے، بزرگ ہیں، ٹولیاں بنا کے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ کرکٹ کے میلے لگا کرتے تھے۔ آج ہمارے میدان ویران ہیں، یہاں پہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے، وہ جیسی بیت، ان بیت کی صورت میں ایک دوسرے کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اپنا درد بانٹتے تھے۔ اور جو یہاں پہ کھیتی باڑی کاشتکاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے، یہاں پہ جو گندم کاشت ہوتی تھی، جو مکئی کاشت ہوتی تھی، اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ ہماری کاشتکاری کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس اتنا اناج ہوتا تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ آج ہماری کشمیر، یہ جو کشمیر ہے، کشمیر جنت نظیر ویران پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بس چڑیاں بول رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں تو چل رہی ہیں، یہاں پہ ہرے بھرے آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جنگل نظر آ رہے ہیں، یہ ہرے بھرے میدان نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ خاموشی ہے۔ یہ چڑیاں بول رہی ہیں، یہ فریاد کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ کے لوگ آرٹیفیشل شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہروں میں چلے گئے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ساجد مغل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ دوسرے شاہد رسول کا بہت شکریہ کہ اس نے بھرپور دعوت دی، اور یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ہم بالکل دیسی ماحول اپنا بھول گئے، تو آج آپ نے اس کی یاد تازہ کی ہوگی کہ جو مرغا ہم نے کھایا وہ تو آدھے گھنٹے بعد بھی ہم اس کو نہیں بوٹیاں توڑ سکے۔ تو میں 3-4 دن سے گاؤں میں ہوں، انشاءاللہ اب دیسی گھی بھی آ رہا ہے، دیسی مکھن بھی آ رہا ہے، لسی بھی آ رہی ہے، وہ کلچر دوبارہ لوٹ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو وہ کلچر دوبارہ آ رہا ہے، انشاءاللہ وہی خوشیاں ہم بنائیں گے، اسی طرح چلیں گے۔ مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں سب ساتھی ہمارے ساتھ آج جمع ہیں، شاہد بھائی آئے ہیں، اپنا اشرف بھائی آئے ہیں، عرفان آیا ہے، شہزاد بھائی آئے ہیں، اس کے بعد اپنا انصار بھائی آئے ہیں، فیاض بھائی آئے ہیں، میرا بیٹا ہے مادیہ آیا ہے، میرا کزن چھوٹا عزیز ہے اپنا خاور، اور آپ آئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک کلچر ہے، سب مل جل کے ہم چل رہے ہیں۔ اور آج میں 3-4 دن سے پہلے بھی میں ہر عید میں آتا تھا، میں اتنا وہ خوش نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اب دیسی مول واپس آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی ہمارا کوئی پروفیشنل، ہم ایک انٹرویو نہیں کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہمارا اتفاق یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، ایک دعوت تھی، شاہد عباسی صاحب نے یہاں پہ دعوت کیا، تو یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج اپنے ماضی کو ہم یاد کر رہے ہیں، اپنا یہ جو دیس ہے ہمارا، جو کشمیر ہے، جو اس کا ماضی گزرا ہے،
جو یہاں کے رسم و رواج تھے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہماری یہ گفتگو بھی جو ایک غیر روایتی قسم کی گفتگو ہے, لیکن مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے. یہ زاہد عزیز عباسی صاحب ہیں ماشاء اللہ, ان کے چونکہ گاؤں کے اندر ایک منفرد نام ہے, لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ خود کاروباری شخصیتیں مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ کسی کو 10 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے ہیں. 2 دن بعد انہوں نے چلے جانا, جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں پراپرلی آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا. میں آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, اختلاف نہیں کریں گے تو جمہوریت کا یہی حسن ہے. میں تو خوش ہوتا ہوں کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے. تو ظاہر ہے ہر وقت تو یہاں نہیں رہ سکتے, لیکن خوشی غمی کسی بھی ایکٹیویٹیز میں ہم یہاں ضرور حاضر ہوتے ہیں, اور میں یہاں کے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں. میں 1-2 مہینے میں ضرور چکر لگاتا ہوں, اور انشاءاللہ مزید اس مدت کو بڑھاؤں گا. کیونکہ یہ تو آپ اپنے حوالے سے آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنی زمینیں آباد کی ہیں, آپ آتے ہیں یہاں پہ, خوشی ہو غمی ہو یہاں پہ شرکت کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن میرا جو آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد تھا, جو ہمارے یہاں پہ کشمیر کے میلے تھے ہمارے دونوں گاؤں کے, کھل مدر آباسیہ کے, یہاں پہ اس طرف کرکٹ کے میلے لگا کرتے تھے, دوست بیٹھا کرتے تھے. ہوٹل پہ آپ جائیں تو ہوٹل پہ جگہ نہیں ملتی تھی, کوئی ایسا بازار نہیں ہوتا تھا جہاں پہ آپ کو رش نہ ملے. چلتے پھرتے 4 لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے, 4 ادھر بیٹھے ہوئے, کھیتی باڑی کے حوالے سے, کاشتکاری کے حوالے سے, بزرگ آپ دیکھیں یہ سب کچھ ویران ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے میلے تھے, جو خوشیاں دی گیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات کو یہ تسلیم کرتا ہوں. تو میں نے تو اپنی بات کی ہے, لیکن میں یہی گزارش کروں گا, لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو لوگ پاکستان میں سیٹل ہیں یا بیرونی ملک ہیں وہ ضرور آئیں, اپنے بچوں کو یہ کلچر دکھائیں, چھٹیوں میں آئیں, گھومیں پھریں, یہ ساری چیزیں دوبارہ آباد کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. یعنی کیا یہ اچھا ہو کہ پراپرلی یہاں پہ جو لوگوں کے گھر ہیں ان کو آباد کیا جائے؟ نہیں, گھر ظاہر ہے جس کا آبائی اسٹیشن جس کا بھی ہے اس کو آباد رکھنا چاہیے. اگر ہر وقت تو مطلب ظاہر ہے لوگ نہیں آ سکتے, اپنی کاروباری مصروفیات ہیں, لیکن سال میں 1 دفعہ ضرور آئیں, خصوصاً گرمیوں میں آئیں, ایکٹیویٹیز کریں, اپنے گھر آباد کریں. تو ظاہر ہے خوشی غمی گھر آباد ہوگا تو اچھا لگے گا نا. یہ میری گزارش ہے کہ گھر بنائیں, آئیں. تو سابق امیدوار وارڈ کھلا باسیاں جو انہوں نے کونسل کا الیکشن لڑا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ تو خود رہتے ادھر ہیں. ظاہر بھائی نے تو جیسا کہ آپ نے سٹائل میں کہہ دیا کہ لوگ آگے چھٹیوں میں گھر آباد کریں, ظاہر بھائی کا جو کہنا تھا وہ اچھا پیغام بھی تھا ان کا. آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں, آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. صاحب آپ کا شکریہ سب سے پہلے کہ ظاہر ہے یہ عید کے دن ہی ہے, کوئی اتنا لمبا نہیں ہے مسئلہ. تو اس مصروفیت میں بھی آپ نے ٹائم دیا. چلو شاہد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں میزبانی کے فرائض انجام دیے اور ایک پراپر دیسی قسم کا کھانا ہمیں کھلایا. سب سے پہلے ان کا شکریہ. باقی آپ جس بات کی آپ جستجو کر رہے ہیں نا, بالکل ہمارا یہی میسج ہے. جتنے ہمارے ریلیٹیو ہیں اس گاؤں کے رہنے والے ہیں, اوورسیئر باہر ہیں, لاہور میں, پنڈی میں, اپنے ملک میں آئیں. اپنے جیسے ہمارے آباء اجداد یہاں پہ خوشی غمی شادیاں پڑھائی سب کچھ اسی گاؤں میں رہ کر کرتے تھے وہ. سو یہی مسائل ان کے ساتھ تھے, لیکن کبھی انہوں نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. آج مہنگائی ہے, یہ کچھ ہے, ہم نے یہ دیکھیں یہ زمینیں یہ ہم نے غیر آباد کی ہوئی ہیں, ان کو آباد کریں. یہیں سے ہمارے آباء اجداد غلہ اگاتے تھے, خوشی غمی شادی سب اسی سے کرتے تھے. تو ہماری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اپنے گاؤں میں آئیں, مکان بنائیں, یہاں رہیں. ایجوکیشن کی اچھی سہولت ہے, سڑکیں اچھی ہیں, کچھ اچھی ہیں, کچھ بن رہی ہیں. تعلیم کے حوالے سے اچھے ادارے ہیں, مثلا ہر قسم کی جو وہاں پہ سہولت ہے ادھر موجود ہے. بس لوگ اپنا ظاہر مائنڈ چینج کریں, واپس آئیں. جیسے ہمارے تعلیم میں تو ہمارا باغ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں آتا ہے, بالکل رازہ کشمیر. اور یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ ٹاپ اس وقت ہمارا سیزن ہے, 4 جگہ پہ ہماری زمینیں ہیں. جیسے یہ زاہد صاحب کی ڈوگو سامنے نظر آ رہی ہے, مال مویشی یا کھلا کسی قسم کی یہاں پہ اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہی گزارش ہے کہ اپنے ملک میں واپس آئیں, گاؤں میں آئیں, تعمیر و ترقی اور یہاں پہ گھر بنائیں, اسکول بنائیں. شاہد بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جب کرونا آیا تو آپ نے اچھی خاصی امداد کی کھلا باسیاں کے اور جو دیگر جہاں کے لوگ ہیں, تو مالی تعاون آپ نے کیا اور ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے آپ تیار تھے, آپ کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے, جب کرونا ہوتا ہے اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تو لوگ وہاں سے بھاگ کے ادھر آتے ہیں, یہاں پہ آ کے اپنی زمینوں میں جا رہے ہیں, اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. اب وہاں پہ کرونا میں جس طرح کے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں یا جتنے بھی فارن جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے نوجوان وہاں پہ تھے, تو ان سے آپ پوچھیں کہ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے, پریشان رہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سال ایک بند کمرے میں گزارا. تو وہی کرونا کے دورانیے میں لوگ یہاں پہ ہوتے, روزگار کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی اشیاء یہاں پہ نہیں مل رہی تھی, اپنی زمینیں تھیں, یہیں آباد ہوتی, یہیں سے اناج اگتا, یہیں سے ہم کھاتے. تو نہ ہمیں کرونا کی بیماری سے متاثر ہوں, نہ کسی اور بیماری سے. کیا کہیں گے سارے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے گئے, لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں رہیں.
लेकिन अपनी अपनी तरजीहात हैं, बच्चों की एजुकेशन है, लोगों की नौकरियाँ हैं, नौकरियों की कारोबार है, लेकिन अपनी आबाई स्टेशन पे जितने भी मसरूफियात हैं उसको आबाद करें, उसमें रहें, खुली फ़ज़ा है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल हम बाउंड नहीं करते कि आप मतलब पूरी ज़िंदगी आके यहाँ रहें, लेकिन सहूलतों के लिहाज से भी कुछ मुश्किलात हैं लोगों को। ये बात तो नहीं है कि अपनी जगह परेशानियाँ हैं, लेकिन आप जिस माहौल में भी बात करें, आबाई स्टेशन जैसा भी है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है और वही प्यारा लगता है। लिहाजा हमें इससे लगाव रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको वैसे अपने माजी के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जो माजी गुजरा है उसको आप याद करके कभी कभी उसको मिस करते हैं कि मतलब एक दौर था मेरा, खेला करते थे, बैठा करते थे? माजी तो जो बंदा याद नहीं करता तो वो तो इंसान ही नहीं है। माजी याद रहता है और माजी से ही बंदा सब कुछ सीखता है। और जितना हमारा माजी यहाँ भी अच्छा गुजरा है, मुझे कभी मायूसी नहीं हुई अपने गांव से, और हर चीज़ यहाँ अच्छी है। तो मैं तो अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने 40 साल ज़िंदगी परदेश में गुजारी है, लेकिन फिर भी तो लौट के आना है ना। आपने उस दौर का जो आपका वक्त गुजरा है उसको सामने रखते हुए जो ये जो दौर चल रहा है, आपने क्या तब्दीली महसूस की? ज़ाहिर है हर चीज़ में बहुत तरजीहात में फ़र्क हो गया पूरी ज़िंदगी में। लोगों के एजुकेशन में फ़र्क है, लोगों में रहन सहन में फ़र्क है, लोगों के लिबास में फ़र्क है, लोगों के खाने पीने में फ़र्क है। लेकिन यह है कि वो चीज़ें जो हमें माजी में बहुत अच्छी लगती थी, जैसे हम बिरयानी कहते थे, लोग कहते थे बिरयानी कैसे होगी, पुलाव कैसे होगा, उन सब चीज़ों से दिल भर गया। अब हम कहते हैं दही मिले, चटनी मिले, मकई की रोटी मिले, तो वो कल्चर अपने आप को दोहरा रहा है और हमें अच्छा लगता है। रियाज भाई इस बात पे मुस्कुरा गए, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं कि लौट के वापस अपने देश में आपने आना है, याद अपने देश की आपको आनी है, ठीक है। खाने पीने के लिहाज से या ये ठंडी हवाओं में बैठेंगे आप, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप बड़े बड़े महलात में हो, आपको दुनिया की हर सहूलत मिले, लेकिन आपको अपने देसी दही की, लस्सी की, ठंडी हवाओं की याद ज़रूर आती है। और जाहिद भाई की बातों से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए मुस्कुराएं, आप क्यों मुस्कुराए? तो मैं कह रहा हूँ कि जो जाहिद भाई बात ठीक करें कि हमारा वैद लौट के आ रहा है, जो हमारी जो ओरिजिनल गज़ा थी, पहले लोग बहुत पीछे आप चले जाए तो लोग कहते थे ये अच्छा नहीं है, लेकिन अभी लोग महसूस कर रहे हैं यार आर्टिफिशियल खा के हम थक गए, मतलब हमें हर चीज़ अपने असल की तरफ लौट दिया। मतलब इस वक्त देखें हमारा ये जो हम खड़े हैं, मतलब मेरे ख्याल हमारे दोनों गाँव ये संगम है कल्लाबादी का, और कितनी खूबसूरत ये जगह है। मतलब आपको कोई हालत की कोई गंदा शाहपुर कोई गंदा नज़र नहीं आ रही है। तो शहरों में तो ज़रा बेशुमार इस तरह मसाइल भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा जो ज़राअत है या जिस तरह जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें तवज्जो देनी चाहिए। मतलब और जाहिद भाई मैं कहता हूँ ये तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हर ईद में ये हमें मिल बैठने का मौका फराहम करते हैं। और जैसे आज हमारे भाई शायद ने दावत की, माशाल्लाह ये जो मुर्गा जो देसी मुर्गा था, मतलब अपने साहब ने खाया मुर्गा, अगर बाजार में 10,000 से कम नहीं होगा इसकी कीमत, मतलब कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जो टेस्ट था वो मतलब कितना उसका वो कहता हूँ मुर्गा था, हमें तवज्जो देना चाहिए कहते हैं। क्योंकि जाहिद भाई की ये क्वालिटी है कि ये टाइम ज़रूर देते हैं अपने गाँव को, खुशी हो या गम हो। यहाँ पे लोगों से इनका उठना बैठना होता है। अंसार भाई यहाँ पे जिनका हर वक्त यहाँ पे रहना होता है, उठना बैठना होता है। आप क्या कमी महसूस करते हैं भी हैं कि नहीं इस दौर में? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शायद भाई का लास्ट में लेना मुश्किल टाइम में यहाँ हमारे पास आए, इस खुशी के मौके पे मैं आपको बहुत दिल की अताकारियों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आपने कहा कि ये जो सूरत हाल है लोगों को यहाँ आना चाहिए, बेसिकली बंदा तो अपने गिरबान में खुद जाके, मैं असल में सऊदीया में रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, अभी मेरा सेटलमेंट यहाँ ही है। बर्फ़ के सीज़न में मैंने एक वीडियो भी भेजी है सब दोस्तों को कि आए ये वर्जिश करें, जो बर्फ़ फेंकें और जो अपनी पुरानी यादें हैं उसको ताज़ा करें। शायद आपके पास भी हो कि नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने वो बर्फ़ फेंकते हुए वीडियो भेजी है। बाकी जो मसला जो हमारा ज़राअत का है, तो सबसे पहले ये ज़लज़ले के बाद 2 दफ्तर ही बने थे यहाँ ज़राअत के, यानी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ज़राअत का अमला ना इस दफ्तर में बैठता है ना उस दफ्तर में बैठता है। बस वो फेसबुक की हद तक वो सारा कुछ होता है। उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अमली तौर पे ज़राअत का कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अभी बीज का मसला है, तो बीज तो कोई 140 रुपये किलो दे रहा है, किसी दुकान पे पड़ा हुआ है। ज़राअत का कोई दफ्तर उस तरह का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग खुद भी अपनी कमर बांधे और उठें, और महकमा ज़राअत वालों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉपर एक दफ्तर में उनका बंदा बैठे, वो हमें बीज भी दे, और बाकी हमारे ये देखें ना कितने सेब लगे हुए, इनकी तराशी इस बारे में साथ भाई इंशाल्लाह इस बारे में हम प्रोग्राम करेंगे। जो आपकी शिकायत हमने कैमरे की आंख से हमें रिकॉर्ड किया, इस हवाले से इंशाल्लाह हम तहकीक करेंगे, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। बाकी ये जो दूसरे हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये तो गुजरात के हवाले से एक अच्छा पैगाम है। ये जो हमारे गाँव के गाँव सारे खाली हो गए, वो तो मैं अभी भी मैंने पहले भी लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है, जो लोग कराची में, लाहौर में इधर हैं, कि ये अपना आबाई जो गाँव है, अपना कल्चर है, इसको अगर आप भूल जाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें ये भी नहीं सोचें कि आप कौन है। कश्मीरी तो कश्मीर क्या है ये नहीं पता ये क्या है। अभी जो नए लड़के आते हैं उनको यहाँ चलना नहीं आता, तो ज़ाहिर है जो
हमारे लोग वहाँ गए हैं, वो गर्मियों में ही अगर आएंगे तो उनको कम से कम चलना आ जाएगा, पहाड़ियों पे चढ़ना आ जाएगा। ये हमारी डोके हैं, उधर हमारे सारे मकान हैं। तो जब हमारी नस्लें वहाँ जाएंगी नहीं तो फिर हमें नहीं पता लगेगा ये ज़मीनें हमारी हैं, हमारे बाप दादा ने ये इतनी कुर्बानियाँ दी थी। तो इसलिए मेरी तमाम हजरात से ये अपील है, गुजारिश है कि जिन जिन की भी यहाँ ज़मीन है इसको आके आबाद कराएं। अभी मर्दमशुमारी हो रही थी, हमने बहुत एहतियात किया उन लोगों से कि भाई कश्मीर का तो नाम ही नहीं है, जो डायरेक्ट पिंडी से बाग लिखा जा रहा है, तो कश्मीर का नाम तो होना चाहिए ना। हमारी कौमी ज़बान तो इधर पहाड़ी है, तो आप इसको उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग किधर जाएंगे? कश्मीर की शनाख्त तो गई है। बेहतरीन बात की है कि इंसान की पहचान तो इसलिए जो है कि हमने कोशिश की है कि हमारी अपनी जो है ना वो भी होनी चाहिए। बेहतरीन इंसान की पहचान, उसकी सकाफत, उसका अपना इलाका है। हम आर्टिफिशियल छोरों के चक्कर में अपनी शनाख्त भूल जाएंगे कि हम हैं कौन। पोल्ट्री फार्म स्टाइल है हमारा कहीं भी। जब हमारे जो आजकल के जो जनरेशन है जो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या किसी भी शहर में जब वो यहाँ पे आती है, जब वो चलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पोल्ट्री फार्म की चूज़ें। तो लिहाजा अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने गाँव आबाद करें, अपने बच्चों को यहाँ की आबो हवा, यहाँ का माहौल दिखाएं, मुतारफ़ कराएं उनको अपने आबा अजदाद की जो खिदमात हैं, जो स्ट्रगल है इन ज़मीनों को आबाद करने के लिए, वो खुदारा अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आखिर में ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शायर सुराबाई साहब जो मेज़बान थे, जिन्होंने आज देसी मुर्ग की दावत की है यहाँ पे, और बड़ा स्ट्रॉन्ग मुर्गा था, हट्टे खट्टे लोग उसको तोड़ नहीं पाए, तो यकीनन उसे भी माजी की याद ताज़ा हो गई। क्या कहेंगे इस हवाले से, जो आपने खूबसूरत हमारी दावत किया, जो हमारा ये सारा मौजू है, क्या कहेंगे? साहिब साहब बहुत शुक्रिया जो आप आए, सारे भाई दोस्त जो सास के रिश्ते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए तो साथ मिल के खाना खाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम जो जनरेशन है, हमने पुराना दौर भी देखा है जब हम साथ बोडी किया करते थे, डोकों में जाया करते थे, डोकों भरपूर आबाद हुआ करती थी, लोग आया जाया करते थे, तो उस वक्त तो काफ़ी मुश्किलात भी थी। अभी तो आप ये देखेंगे पीछे यहाँ जो सड़क है ना पीछे ऊपर संगत तक पहुँच गई। तो मैं जितनी भी मेरे नौजवान भाई हैं जो ओवरसीज़ में जो अपने रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में उनकी फैमिलियाँ उधर हैं, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आएँ अपने गांव को आबाद करें। अभी तो यहाँ सड़कों की भी अप्रोच है, तालीमी निज़ाम भी बेहतर है, तो जो पुराना हमारा सिस्टम है आगे वो बहाल हो और हमारे ये गांव भरपूर तरीके से आबाद हो, खुशियाँ इसी तरह लूटें, बुजुर्गों के पास बैठें, तो सियासी समाजी माशी तौर में बेहतर किरदार अदा कर सकें। बेहतरीन पैगाम है इनका, और इनके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये खुद इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, बड़ी अच्छी जॉब माशाल्लाह, रोज़गार का सिलसिला भी इनका अल्लाह ताला ने अच्छा दिया हुआ है। ये चाहें तो अपनी फैमिली को वहाँ सेटल करवा सकते हैं, ले जाके वहाँ पे अच्छी तालीम और सारे मामले कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ये ज़मीनें आबाद करने के लिए और बुजुर्गों पे नक्शे कदम पे चलने के लिए अपने घर को आबाद रखा हुआ है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप नौजवान हैं, चूँकि आपको सबसे पहले वहाँ पे इस्लामाबाद में जाना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि ये हमारे पीछे जो जगह नज़र आ रही है इसको जब कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ पे क्रिकेट खेली है, एक अच्छा दौर गुजरा उनका, यहाँ पे बड़ी यादें वाबस्ते हैं। जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, यकीनन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट खेला होगा, वो ज़रूर वो अपने उस माजी को याद करते होंगे। तो पीछे ऊपर 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 लेके जाएँ, ऊपर अगर हम आपको दिखाएं तो वहाँ पे कोपरा जगह का नाम है, वहाँ पे पीछे हमारी डोक है, रेड बन, फिर छपरियाँ, फिर कंठी वगैरह आती है। ऊपर इस साइड पे अगर हम आपको दिखाएं, इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो पीछे खला बासियों की डोकें हैं सारी। तो आप जरा जाए भाई बताएं कोको में से डोके लगती है? ये छोट डोक है, शेखाली अपर है, शेजारी लो है, बाड़ा है, ये सारी डोकें हमारी। यकीनन हमारे नौजवान जो इस वक्त घरूनी दुनिया में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये माहौल, ये इलाके, इन जगहों के नाम सुन के वो उनकी जो माजी है उसको ज़रूर याद कर रहे होंगे, इस आबो हवा को, इन ठंडी हवाओं को ज़रूर मिस कर रहे होंगे। तो आखिर में ज़्यादा वासी साहब कुछ पैगाम देना चाहें आप? बस मेरा यही पैगाम है कि जब भी आपको कोई मसरूफियात का काम हो तो गांव आएँ, गांव के लोगों से मिले जुलें, अपना कल्चर अडाप्ट करें, घर बनाएं, बच्चों को घुमाएं फिराएं और इस गांव को और खूबसूरत करें। नौजवान है हमारे पास, स्टूडेंट है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज इनकी रहती हैं, और जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई, आप नौजवान इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले ऐसा है कि मैं तो खुद इस्लामाबाद में ही रहता हूँ स्टडीज़ के सिलसिले में, और जब भी मुझे छुट्टियाँ होती हैं ज़्यादातर, मुझे अगर हफ्ते की भी छुट्टियाँ होती हैं मैं गाँव आ जाता हूँ। मुझे बेसिकली अपना गाँव भी अच्छा लगता है, ये कल्चर, और वहाँ पे रह के ना इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह यहाँ पे रहे। जितनी भी यहाँ पे बात हुई, बात यही है कि जब भी मसरूफियात ना हो आप गाँव में आओ और गाँव में रहो। हमारा भी यही है और आगे भी इंशाल्लाह यही होगा कि जब कहीं हम फ्री होंगे या छुट्टी होगी तो मुड़ के हमने गाँव में ही आना, इधर ही रहना। ज़मीनें आबाद करनी चाहिए अपनी, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे
अपनी सकाफत को प्रमोट करना चाहिए हमें, क्या ख्याल है? ये हम अभी भी कर रहे हैं। उधर हमारे जितने भी उधर के दोस्त होते हैं उनको हम यहाँ का कल्चर बताते हैं, हम ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है, ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और बाकी हमारी आगे भी लाइफ में यही है कि रहना तो गाँव में ही है, ऐसे मुड़ के बेसिकली हमने गाँव में मरना हो तो हम दफनाने इधर आते हैं, खुशी शादी ब्याह हो तो हम इधर ही करते हैं। असल में बात यह है कि गाँव है ना, इसको बेसिकली कुछ लोगों ने कब्रिस्तान समझा हुआ है कि पूरी ज़िंदगी रहते हैं शहरों में, इस्लामाबाद में रहो, लाहौर में रहो, कराची में, फोत होते हैं ताकि दफन गाँव में करो। ये हमारा गाँव में, यहाँ पे आके रहो, कब्रिस्तान नहीं है रहने की जगह। तो ये थोड़ा सा गिला लोगों से। बहुत बेहतरीन पैगाम एक नौजवान ने एक ऐसा पैगाम दिया जिस पे यकीनन हम सबको सोचना चाहिए कि जितने भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं और बिल्कुल बाग के मतलब खराबासियाँ के हैं कि आपने अपनी ज़मीनों को कब्रिस्तान बनाया हुआ है। कि ये बहुत प्यारी बात की है कि जब हम वहाँ से कोई फोत होता है तो दफनाने यहाँ पे आ जाते हैं, दफना के फिर वापस चले जाते हैं। ये जन्नत नज़ीर है, ये एक ऐसी जगह है जिस पे पूरी दुनिया मरती है। आप देखें 70 ईयर से अबव हो गए जो जंग है मसला कश्मीर पे क्यों है, ये खूबसूरती इतना है कि इसको कुछ छोड़ना नहीं चाहता है। तो खुदारा इस कश्मीर जन्नत नज़ीर का एहसास कीजिए, इसकी वैल्यूज़ को समझिए, इसकी कदर कीजिए, इसको आबाद कीजिए। यकीन जाने कि हम तो खुश नसीब तरीन इंसान है, खुश नसीब तरीन लोग हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़मीन में पैदा किया है कि जो यकीन इस दुनिया में जन्नत कहलाती है। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद जायद अजीज़ भाई साहब के बेटे हैं ये, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बस ये जो हम जो क्या नाम है, पहले तो कराची रहते थे तो इतना हमारा गांव में आना जाना हमारा भी नहीं था, तो ना पता था कि कौन है, ख़ानदान क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो हम पिंडी शिफ्ट हुए तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमारा ख़ानदान से हमारा उठना बैठना हुआ एक दूसरे के साथ, मतलब पता लगा कि रिश्तेदारी क्या है, गाँव की खूबसूरती क्या है। तो जब आते हैं अभी छुट्टियों में गांव में, तो जब जाते हैं माइंड रिलैक्स हो जाता है, यहाँ जब आते हैं दिल ही नहीं करता वापस जाने का। तो ये कि ख़ानदान से हमारा अच्छा उठना बैठना होता है, रिश्तेदारी का पता लगता है, यही चीज़ें दुनिया में मतलब काम आती हैं कि आपको अपनी रिश्तेदारी के साथ मतलब निभाना, गाँव में रहना, ये सब चीज़ें यही सबसे मज़ा आता है। ज़बरदस्त बेहतरीन। आखिर में हम आप तमाम लोगों को जैसा कि स्पेशली जो नौजवानों ने गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को सामने रखते हुए आप तमाम लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मजबूरी होती है लोगों की, किसी का कारोबार है पाकिस्तान में, लाहौर में, आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, लाहौर में, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में, कोई तालीम के हवाले से, किसी अच्छी तालीम के हवाले से वहाँ पर रह रहा है कोई, लेकिन बाद लोग हमने देखे हैं कि वो बगैर किसी मकसद के वहाँ पर फैमिली को लेके गए हुए हैं। किसी का कहना यह है कि फैमिली के बगैर दिल नहीं लगता, किसी का कोई इशू है, किसी का कोई इशू है। तो खुदारा ये आर्टिफिशियल शोहरत को छोड़ दीजिए, अपने इस कश्मीर को आबाद करें, अपनी ज़मीनों को आबाद करें। जैसा कि हमारे नौजवान खावर ने कहा कि आपने इसको कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जब मरते हैं तो दफनाने यहाँ पे आ जाते हैं, फिर दफना के फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, मुश्किल मराइल हैं, मुश्किल वक्त है ये कि रोज़गार होगा तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकेंगे। रोज़गार के हवाले से आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पे भी थोड़ी थोड़ी तवज्जो ज़रूर दीजिए। इसी के साथ साजिद मूर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया सर।